کرن بلبل تھی سامان پیدا کر بلوہا باغبانوں نو بہار شان پیدا کر کے وی کے بڈگام جو زرعی یونیورسٹی کے یہاں ڈسٹرکٹ میں ایک ادارہ ہے جو مسلسل کام کر رہا ہے اس پہ فلاح و بہبود جو فارمرس ہے فارمنگ کمیونٹی ہے ان کے لیے. تو اس میں ہمارے یہ بہت سارے مینڈیٹ ہوتا ہے. اس میں جو ایک یہ ہے ہمارا کہ کلینکل کیمپ جو ہم لگاتے ہیں ڈسٹرکٹ میں کسی زونز میں یا پھر دوسری جگہوں پہ. آج ہم نے کیا تھا کہ ہم اس زون میں جو قاضی باغ ہے اس سائڈ ہے بڈگام کا, تو اس میں ہم نے کلینکل کیمپ کا منعقد کیا جو پلانٹس کے ریلیٹڈ تھا. اس میں ہم نے زمینداروں کو اس کے بارے میں بتایا کہ جو ڈیزیز ہے, انسیکٹ ہے, پیسٹ ہے, اس کا کیسے ہم مینجمنٹ کر لیں تھرو سائنٹیفک ویز. دوائیاں کیسے لگائی جاتی ہے اس میں انسیکٹ یا اس میں جو یہ پرابلمز آتی ہے کبھی کبھی جو ہوتا ہے کہ یہ سیدھے دکانداروں کے پاس جاتے ہیں, وہاں سے دوائیاں لے لیتے ہیں, خود ہی بتاتے ہیں کہ یہ یلوئنگ ہو گئی, وہ دوائی دے دیتا ہے. اس میں ہم نے بتایا کہ یہ پراپرلی اس کو ڈائگنوز کرنا پڑتا ہے کہ یہ پرابلم اگر ہوئی ہے تو کس بات سے ہوئی ہے. اس کے لیے ہمارا جو کے وی کے ہے وہ ڈائگنوسٹک وزٹس کے لیے جاتا ہے یا سیمپلز یہ اٹھا کے وہاں لاتے ہیں. تو ایپل آرچرڈس میں تو پلانٹ کے جو لیوز ہوتے ہیں ان کے سیمپلز لاتے ہیں ہمارے پاس. جو رائس وائس کراپ ہے اس کا پلانٹ اٹھا کے نکال سکتے ہیں, لا سکتے ہیں ہمارے پاس. اس سے یہ ہم نے جو ہمارے ساتھ یہاں پہ ٹیم تھی اس میں ہر ایک شعبے سے ہمارے پاس سائنٹسٹ موجود تھا. یہاں پلانٹ پروٹیکشن کا, پیتھولوجی کا, سوائل سائنٹسٹ زرعی یونیورسٹی سے آئے تھے. اور ہمارے ساتھ جو یہ لائن ڈپارٹمنٹ ہے, ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر ہے, ایگریکلچر ہے, ان کے آفیشلز بھی آئے تھے. تو دن بھر یہ ڈیلیبریشن اسی پہ ہوگی کہ کیا اس کا ان کا جو ہم یہ جو ہے بیماری کا علاج کس طرح کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. میں ڈاکٹر امری نبی کے وی کے بڈگام میں ویجیٹیبل سائنٹسٹ ہوں. یہ جو قاضی باغ ہے یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سبزیوں کی بہت کاشت ہوتی ہے, اور ان میں کچھ جیسے ان کے پاس کچھ ایشوز تھے, جیسے کچھ بیماریاں لگ رہی تھی, کچھ کیڑے تھے, کچھ ان کے پاس کھاد کب کتنی کیسے ڈالنی ہے اس کی انفارمیشن چاہیے تھی. تو یہ سب چیزیں مد نظر رکھ کے ہم نے یہ پلانٹ کلینکل کیمپ جو ہے اس ایریا میں ہم نے آج یہ آرگنائز کیا. آج جی دیکھیے ہمارے فارمرز کا جو مین ایشو رہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اسپیسنگ ہے اس کا خیال نہیں رکھتے. ان کو لگتا ہے کہ جتنا ہم گنا فصل لگائیں گے اتنی زیادہ پیداوار ہوگی, جس میں یہ نہیں سوچتے کہ اس سے جب ہم کسی پلاٹ کی کسی ویجیٹیبل بیڈ کی بات کرتے ہیں تو وہاں نمی بھی بڑھ جاتی ہے, جس سے کہ بیماریاں زیادہ لاحق ہوتی ہیں. جو فارمر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے زیادہ پودے ہوں گے تو زیادہ پیداوار ہوگی. تو ہم نے بھی اسی ایشو پہ زیادہ بات کی کہ آپ کو پراپر سپیسنگ, اور یہ نہیں کہ آپ کھاد کی پوری بوریاں ڈال رہے ہیں. جتنا ریکمنڈ کیا گیا ہے یونیورسٹی سے, جس سٹیج پہ ریکمنڈ کیا ہے کھاد لگانا, اس پہ اگر وہ دھیان دیں گے تو ان کی فصل بھی اچھی ہوگی, کوالٹی وائز بھی اور کوانٹٹی وائز بھی. اس میں بیماریاں بھی کم لگیں گی, اس میں کیڑے بھی کم لگیں گے, اس میں پیداوار بھی اچھی ہوگی.
एक्चुअली जो स्कॉस्ट कश्मीर है, इसका जो के बड़गाम सेंटर है, हम हर साल जो ये प्लांट क्लिनिकल कैंप्स होते हैं ये ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट जोन्स में। चूँकि हमारे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के बड़गाम में 18 जोन्स हैं, 18 में तो पूरा पॉसिबल नहीं होता। हम कोशिश करते हैं कि जोन्स को क्लब करके ये कैंप्स हम ऑर्गेनाइज करें। और ये कैंप्स हम इसलिए ऑर्गेनाइज करते हैं, इन कैंप का मकसद ये होता है कि जो फार्मर्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यू होते हैं जो हम तक पहुँच नहीं पाते मीडिया के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, उनके इश्यूज़ हम उन्हीं के एरिया में आके सुनते हैं और उनको वहाँ ही उनका कोई ना कोई सलूशन बताते हैं। इसमें हम विज़िट भी करते हैं ऑर्चर्ड्स में, और जो बाकी फील्ड्स हैं उनमें हम देखते हैं उनके क्या क्या इश्यूज़ हैं, उनको ऑन स्पॉट हम रिजॉल्व करते हैं। हमारे प्लांट क्लिनिकल कैंप्स का मकसद ही ये होता है कि फार्मर्स, हमने देखा कि कम से कम 60-70% फार्मर्स जो होते हैं उनकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, चाहे वो स्प्रे की हों चाहे दूसरी कल्चर प्रैक्टिसेस हों, वो साइंटिफिक लाइन्स में नहीं होती, जिससे ये होता है कि उनको प्रॉपर फ़ायदा उसका नहीं मिलता। स्प्रे करते हैं वो टाइमली स्प्रे नहीं होती है, फर्टिगेशन वगैरह जो होती है, फर्टिलाइज़र्स वगैरह जो देते हैं वो भी टाइमली नहीं देते, डोजेज क्या हो वो भी नहीं वो सही से देते। तो इस कैंप का मकसद ये होता है कि हम ऑन स्पॉट आके उनको आमने सामने बताएं कि आपको फर्टिलाइज़र्स कैसे देने हैं, स्प्रे कैसे करनी है, कब कब करनी है, बीमारी आने से पहले करनी है, उसके बाद करनी है। तो ये सब हमारे इस कैंप का यही मकसद होता है, ताकि हम फार्मर्स को साइंटिफिक लाइन्स पे बता सकें कि आपको जो स्प्रेज वगैरह हैं, जो बाकी प्रैक्टिसेस हैं ऑर्चर्ड्स में, वो कैसे करनी है। और इस प्रोग्राम में आज हमने एक मैसेज दी फार्मर्स को कि एक इंसेक्ट फैला हुआ है जो साउथ से स्प्रेड होते होते हमारे बड़गाम तक पहुंच चुका है। जैसे स्कैब हमें कश्मीर में अपनी नहीं थी, वो बाहर से आई स्कैब। आज के टाइम पे ऐसा कोई ऑर्चर्ड है नहीं जहाँ पे स्कैब का इन्फेक्शन है नहीं। ऐसे एक इंसेक्ट फैला है जिसको एप्पल लीफ ब्लश माइनर कहते हैं। वो हमारा इंसेक्ट नहीं है, वो कश्मीर में नहीं था, वो किसी प्लांटिंग मटेरियल से किसी से बाहर से इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो अब सारे जो कश्मीर है आस्ता आस्ता उसमें फैलता जा रहा है। तो बड़गाम में वो पहुंच चुका है, हमने ऑलरेडी उसको आइडेंटिफाई किया है। तो हम इस प्रोग्राम के जरिए मैसेज देना चाहते हैं। उसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक एडवाइजरी बनाई है, तो फार्मर को राउंड ईयर उस एडवाइजरी को फॉलो करना है ताकि हम उस इंसेक्ट से बच सकें। अदरवाइज वो इंसेक्ट जो है वो बहुत डैमेज करेगा, जिससे हमारे ऑर्चर्ड्स को बहुत नुकसान होगा और हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम यूसुफ हूँ, SMS प्लांट प्रोटेक्शन KV के बड़गाम से। आज जो ये प्लांट क्लिनिकल कैंप था, इसका मकसद ये था कि हम देखें कि हमारे जो फार्मर्स हैं कि बड़गाम डिस्ट्रिक्ट के, ख़ासतौर पर इस काजीबाग साइड के, इनको कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। हमारी पूरी टीम आई थी जिसमें हर शोबे से साइंटिस्ट थे। हम एक्चुअली देखना चाहते थे इनको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, और हमने कोशिश की कि इनके जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको रिजॉल्व करने की। और हमने फिर बहुत जगह इनके जो फील्ड्स थे उन पे भी हमने नज़र दी ताकि हम इनके जो प्रॉब्लम्स थे उनको रिजॉल्व कर पाए। जो फार्मर्स हैं उनको चाहिए कि जब भी कोई दवाई या कोई फर्टिलाइज़र ले, वो हमेशा वो सर्टिफाइड फार्मर्स से ले, क्योंकि हर जगह जो है फार्मर अपने खेतों में जो है फर्टिलाइज़र यूज़ करता है, तो इसलिए उसको चाहिए वो हमेशा सर्टिफाइड जो भी डीलर्स हैं उन्हीं से ले। नंबर 2, जो भी वो प्रैक्टिसेस करते हैं, चाहे सोइंग है चाहे वो स्प्रेइंग है, वो चाहिए कि वो नोट डाउन करे, एक डायरी मेंटेन करे जहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिसेस मेंटेन करे। इवन जो वैरायटी वो यूज़ करते हैं, अगर वो फील्ड क्रॉप्स के हवाले से काम कर रहे हैं, अगर वो ऑर्चर्ड्स में काम कर रहे हैं, जो भी वो स्प्रेज कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, किस डेट पे कर रहे हैं, कौन सा केमिकल लगा रहे हैं, किस कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, वो भी चाहिए कि वो एक डायरी मेंटेन करें, उस पर ये चीज़ें लिखें कि हमने कब यूज़ किया, क्या यूज़ किया, ताकि उनका अपना भी एक रिकॉर्ड रहे कि हमने क्या यूज़ किया, और एक उनकी ऑब्जर्वेशन भी रहेगी कि उन्होंने जो ये स्प्रे किया तो उससे क्या फ़ायदा हमको होता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये इस हमारे कैंप का भी ये मकसद था कि ये चीज़ें हम उनको डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन भी दे कि उनको कहाँ से केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स लानी चाहिए। जी, मेरा नाम सरवर हुसैन है, मैं इचगाम से हूँ। आज का जो प्रोग्राम यहाँ पर मुनाक़द किया गया है काजीबाग में KV के बड़गाम ने, इस रिलेटेड इचगाम के फार्मर्स, काजीबाग के फार्मर्स को यहाँ पर लाया गया। उनको यही हिदायत दी गई कि अपने बागात, अपने एग्रीकल्चर लैंड कैसे हम महफूज कर सकते हैं, उन पे हम कैसे तदाबीर कर सकते हैं, और उन पे जो बीमारियां लग सकती हैं वक्तन फ़वक्तन उन पे कैसी दवाएँ की जा सकती हैं, और उन दवाइयों का भरपूर इस्तेमाल किया करें और वक्त पर करें, ताकि हम आइंदा अपने बागात और अपने पैडी लैंड को
महफूज रख सके। लास्ट में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी काफ़ी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ऐसे इकदाम उठाए और ऐसे इकदाम KVK की तरफ से आज हम भरपूर शुक्रगुजार हैं KVK बोर्ड के, जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर मुनाकिद किया और इचगाम में भी कभी कभार किया है, और ताकि ये लोगों की फलाह बहबूदी के लिए, और लोग हमेशा से ही इन प्रोग्राम में हमेशा अपना योगदान देते हैं और लोग हमेशा इनका फ़ायदा उठाते हैं। बडगाम कसबाग पे अब्दुल कयूम ये कैंप आज KVK यमो कर जानकारी ऐसे बागन हज कत बागस क्या ये प्रॉब्लम अड़न स्केब मतेम अड़न बाकी प्रॉब्लम सब्जी बागन तो यमो कर अमिच जानकारी यमो दोप तुम करो अस रब्त ये प्रॉब्लम रोज न कह दिवान वक्त वक्त आय वक्त वक्त वो कतनस क्या करो तुम अस रूद करान अम सत मिले फायदे। आज क्या मकसद आज कैंप अम मूजूब कि यमो दोप क्या क्या प्रॉब्लम तुम कम जरूरत कम आइटम जरूरत कस मशीन जरिए जरूरत तम हसा वातन तुम करो अस सतन रब्त तो बड़ शुक्रगुजार वक्त वक्त हेल्प करान।